Welcome to my channel. I am going to start a series on sentence correction rules, and this is my first lecture, and we will study how to correct your grammatical mistakes while writing sentences in English. So let's start with subject verb agreement. As you all know, subject verb agreement means जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब यूज़ होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा. अब सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन सब्जेक्ट is which performs the action. Secondly, subject is the main topic of the sentence. Now singular subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb. cat singular है तो sleeps आया, क्योंकि singular verb में हमारे पास क्या होता है, verb first form के साथ s या es होता है. इसी तरह present perfect में has होता है. So the cats या do does any kind of verb according to the tense. The cats sleep on the mat. Now cats are plural, that why हमने sleep यूज़ किया, sleeps नहीं यूज़ किया, because sleep is plural verb. यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या एस आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता. सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सब्जेक्ट्स और नॉट से ज्वाइन किए हों उनका मीनिंग होगा, और का मतलब होगा कि दोनों में से एक भी नहीं, और दोनों में से एक, और नोर का मतलब होगा दोनों में से एक भी नहीं. अब दोनों में से एक को रेफर किया जा रहा है तो इसलिए इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगेगा. यानी अगर सेंटेंस है नाइदर द डॉग नोर द कैट इज़ हंग्री, तो उसमें जो स्पीकर है वो डॉग को अलहदा और कैट को अलहदा कंसिडर करके बात कर रहा है, यानी दोनों को सिंगुलर ट्रीट कर रहा है. दैट्स वाई इज़ यूज़ हुआ. अगर ये यहाँ पे होता डॉग्स एंड कैट्स, फिर आना था आर हंग्री. आगे है प्लूरल सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नोर रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, जैसे कि नाइदर डॉग्स नोर कैट्स आर हंग्री. अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लूरल थे, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा, आर लगा. तो और नोर व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट दे विल टेक सिंगुलर वर्ब. When they are joined by a plural subject, they will take plural verbs. When the subject is a collective noun. Now, what is collective noun? Collective noun is a noun that refers to a group of individuals, group of people, any team. It can take a singular or plural verb depending on whether the emphasis is on the unity of the group or the unity within the group. Now, you have to think about the main emphasis of the sentence. अगर emphasis टीम पे दिया जा रहा है जैसे सेंटेंस में, तो टीम एक सिंगुलर एंटिटी है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसे हम सिंगुलरली ट्रीट करते हैं. लेकिन अगर टीम पे मेंबर्स पे फोकस किया जा रहा है, जैसे द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, अब इसका मतलब कि टीम के मेंबर्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं. द टीम इज़ प्लेइंग वेल, यहाँ पे सिंगुलर इसलिए यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टीम को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है. इसी तरह हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, फिज़िक्स. अब वो पढ़ने में तो दे हैव एस इन द एंड, बट दे विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगुलर नाउन. Likewise, names of organizations like United Nations organizations and all that, because they are collective nouns, so they will have helping singular helping verb mostly. Now, indefinite pronoun. Now you need to know what is indefinite pronoun. Indefinite means the pronoun that refers to the subject that is not known. For example, everyone is invited to the party. अब everyone कौन कौन है you don't know, तो इसलिए ये indefinite है. अब जहाँ पे भी indefinite pronoun आएंगे जैसे each and everyone, anybody, nobody, somebody, anyone, कोई भी that is not referring to specific person, तो they will be treated as a singular subject. और फिर इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. जैसे everyone is invited होगा and everyone are invited नहीं होगा.
anybody will do this, या anybody is coming, nobody nobody is going to the party. So इन सारे sentences में we used singular helping verb. Indefinite pronouns like both, few, many, several are plural and require plural verbs. Now both, few, many, several जब आपने पढ़ा तो आपको पढ़ के अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितने, मतलब few मतलब कितने, many, several. तो यहाँ पे भी ये indefinite pronouns हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटी को रेफ़र कर रहे हैं तो इसलिए इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं. जैसे मैनी पीपल, अब यहाँ पे पीपल्स को काउंट करके बोला जा रहा है, तो जब क्वांटिटी या नंबर्स को रेफ़र किया जाए, जैसे फ्यू क्वांटिटी होगा, नंबर्स रेफ़र होंगे, तो यहाँ पे फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे दैट विल बी प्लूरल. वो सेंटेंसेस जिनमें हेयर और देयर स्टार्ट में आए उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जैसे हेयर आर द बुक्स, बुक्स के साथ आर लगा, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने इज़ लगा दिया. अगर देयर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती तो देयर आर द प्रॉब्लम्स. नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट्स दैट आर ज्वाइंड बाय एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब, लाइक द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब एंड का मतलब कि दोनों को ज्वाइन करके अलग-अलग बात की जा रही है, सही है. बट अगर होता द डॉग और द कैट तो फिर इज़ प्लेइंग, मतलब उनमें से एक, नोर द डॉग नोर द कैट फिर भी इज़ प्लेइंग. लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर चीज़ को रिफ़र कर रहा है, जैसे पीनट बटर एंड जेली, अब ये दोनों मिलके एक डिश बनाते हैं, सो इसलिए हम इसको एक ही डिश कहेंगे, इज़ माई फेवरेट सैंडविच. You can take any other example like we usually use the jacket and the scarf will keep you warm, or anything that comes complementary with each other and is treated as a singular unit that will take singular plural helping verb. Thank you for watching my video.